یوم معذورہ ڈیرہ غازی خان میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی سرتاج گل کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ خصوصی افراد میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ سیالکوٹ میں وزیرآباد روڈ پر نجی فیکٹری ملازمین کے تشدد سے غیر ملکی منیجر جاں بحق، مشتعل افراد نے لاش کو آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس، آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب، ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت جاری۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کر لیا۔ کوٹہ 2 میں خاتون کا اے ایس آئی پر مبینہ زیادتی کے واقعہ کی متاثرہ خاتون گرفتار۔ خاتون پر اے ایس آئی سے 50 لاکھ روپے وصول کرنے کا الزام۔ پیسے بٹورنے کے بعد زیادتی کے ملزم کو مقدمے میں ڈسچارج کروانے پر پولیس نے متاثرہ خاتون کے خلاف کارروائی کی۔ رواں سال کا آخری مکمل سورج گرہن کل ہوگا، جو جنوبی افریقہ، جنوبی آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، بحر اوقیانوس، بحر القاہر، انٹارکٹیکا اور بحیرہ ہند کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان میں سورج گرہن نظر نہیں آئے گا، محکمہ موسمیات۔ نیب نے آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کو نیب نے سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ضمانت کی درخواست پر سماعت اگلے ہفتے کے لیے مقرر کی تھی۔ لیا کے نواحی شہر فتح پور میں بیکری کے کارخانے میں دھماکہ، 4 مزدور شدید زخمی۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا۔ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، زخمی تحصیل ہسپتال فتح پور منتقل۔ موذی وبا میں کمی، کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.87% ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,457 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ 391 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ جان لیوا وبا سے 8 افراد انتقال کر گئے۔ 895 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ دھند کے باعث لیا کے مختلف علاقوں میں حادثے، 1 شخص جاں بحق، 8 سے زائد زخمی۔ مرنے والے شخص کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں کو مقامی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، طبی امداد جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر، پاکستانی روپے کے مقابلے قدر میں 48 پیسے اضافہ، 176 روپے 90 پیسے پر ٹریڈ۔ سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ حکومت نے عوام پر 60 ارب روپے کی بجلی گرا دی۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 74 پیسے اضافہ۔ نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ خدا کے بندے میں حکومت کو اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے کسان کی طرف دیکھو، کسان کی طرف دیکھو، کسان کی طرف دیکھو، کھاد سستی کرو۔ لیا میں یوریا کھاد کا بحران جاری۔ کاشتکار ایک بوری کے حصول کے لیے قطاروں میں لگ کر ذلیل و خوار ہونے لگے۔ یوریا کھاد 2200 روپے میں بھی نایاب۔ محکمہ زراعت خاموش تماشائی، کسانوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں سرد رہنے کی پیش گوئی۔ لیا میں دھند کا راج۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے کئی مقامات پر بند۔ شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ دھند کے باعث حادثات میں اضافہ۔ سکردو، استور، ہنزا اور گلگت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے رہنے کا امکان۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو ٹکر، 1 اے ایس آئی شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ بس ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بیٹے کی دعوت ولیمہ کے باعث سیاسی سرگرمیاں 15 روز کے لیے روک دی۔ مریم نواز 17 دسمبر کو جاتی عمرہ میں بیٹے کے ولیمے میں شرکت کریں گی۔ ڈی پی او شیخوپورہ جرائم پیشہ عناصر کے کلا کما کے لیے متحرک، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کا معائنہ۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو چیک کیا، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے الرٹ رہ کر فرائض منصبی سر انجام دینے کی ہدایات۔ خصوصی افراد کا عالمی دن، پنجاب حکومت کا خصوصی افراد کے لیے خصوصی پروگرام تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسپیشل پرسنز کی مالی معاونت کے لیے ہم قدم پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ لیا کے نواحی شہر کوٹ سلطان میں آوارہ کتوں کی بہتات، مکینوں کا جینا محال۔ آوارہ کتوں کے غول گلیوں، محلوں اور سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگے۔ سکول جانے والے بچے خوف زدہ، شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔
हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी खजाना भी तब्दील कर दिया। हामिद शेख याकूब एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फाइनेंस डिवीजन तैनात। वफाक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस टुडे से मैं हूं मैमुना रफीक और मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं लिया के नवाही शहर फतेहपुर से, जहां पर दरबार अनायत शाह के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बेकरी के कारखाने में जोरदार धमाका हुआ, जिससे कारखाने की इमारत मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई है। इमारत गिरने से कारखाने में मौजूद 4 मजदूर शदीद जख्मी हो गए हैं। धमाके की इतला पर रेस्क्यू और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को इमारत से निकालकर तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका गैस लीकेज और सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। जख्मी मजदूरों की शनाख्त शहबाज, मोहम्मद सज्जाद, गुलफाम और मोहम्मद इरशाद के नाम से हुई है, जिनको तहसील अस्पताल फतेहपुर में इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। खबर शामिल करते हैं अमरीकी करेंसी के हवाले से कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 48 पैसे इजाफे से 176 रुपए 90 पैसे की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 238 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 43,557 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई, जिससे सरमाकारों को 3 खरब से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 100 इंडेक्स में 2134.99 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 43,234.15 पॉइंट की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। मौसम के हवाले से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। लिया में धुंध के साथ सर्दी में भी इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मोटरवे कई मकामात पर बंद हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में शिमाली इलाकाजात में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित में सकरदू, अस्तोर, हुंजा और गिलगित में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे रहेगा। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में भी मौसम सर्द और जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई है। खबर शामिल करते हैं कोरोना के हवाले से कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 391 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,753 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,86,022 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.84% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46,457 नए टेस्ट किए गए। 895 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 4,43,310, सिंध में 4,76,233, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,194, बलोचिस्तान में 33,491, गिलगित बल्तिस्तान में 10,413, इस्लामाबाद में 1,07,811, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,570 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,21,18,750 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46,457 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,45,155 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 895 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 13,031, सिंध में 7,622, खैबर पख्तूनख्वा में 5,855, इस्लामाबाद में 957, बलोचिस्तान में 360, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 742 मरीज जान से हाथ धो बैठे। खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को शेखुपुरा से, जहां पर DPO एहसन सैफुल्लाह जराइम के कलाकमा के लिए मुतहरिक हैं। ज़िला पुलिस ऑफिसर का शहर के दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को चेक किया और बेहतर फ़राइज़ सर अंजाम देने पर शाबाश दी। इस मौके पर DPO शेखुपुरा ने एहलकारों को चुस्त और अलर्ट रहकर ड्यूटी देने की तंबीह की। जिले पुलिस ऑफिसर का कहना था कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ड्यूटी से गफलत पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं।
ایک اور خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ حکومت نے چھٹا سیکٹری خزانہ بھی تبدیل کر دیا۔ یوسف خان کی جگہ حامد یعقوب شیخ کو نیا ایڈیشنل سیکرٹری انچارج فائنانس ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد سینٹرل سلیکشن بورڈ میں ترقی پانے والے افسروں کے نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا۔ پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کے ساتھ سیکٹریٹ گروپ کے 5 اور کسٹم گروپ کے 7 افسروں کو گریڈ 21 میں ترقی دی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت میں اب تک 6 سیکٹری خزانہ تبدیل کیے گئے، جن میں عارف خان، یونس ڈھاگا، نوید کامران، کامران علی افضل اور یوسف خان شامل ہیں۔ ایک اور خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بیٹے جنید صفدر کی دعوت ولیمہ مصروفیات کے باعث 15 دن کے لیے سیاسی سرگرمیاں ترک کر دی ہیں۔ جنید صفدر اور عائشہ سیف کی رخصتی اور ولیمے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز آئندہ کچھ روز کے لیے دعوت ولیمہ میں مصروف رہیں گی۔ جنید صفدر کا ولیمہ 17 دسمبر کو جاتی عمرہ میں ہوگا۔ 14 دسمبر کو بارات لاہور سے چک شہزاد اسلام آباد آئے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے، جہاں الخدمت فاؤنڈیشن لیا کے زیر اہتمام معذور افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ معذور افراد، بچوں، بڑوں، بوڑھوں میں ویل چیئرز تقسیم کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر علی آوان سے۔ جی بالکل، میں موجود ہوں لیا میں۔ لیا کے ایک نجی ہوٹل میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اسپیشل پرسنز میں ویل چیئرز تقسیم کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلعی صدر رضوان خان، ان سے جانتے ہیں کہ اس تقریب کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ آج کی جو ہماری تقریب ہے وہ انٹرنیشنل ڈسیبل ڈے، جو بین الاقوامی طور پہ آج معذوروں کا دن ہے، اس حوالے سے تھی۔ اور آج ہم نے جو ہے 24 جو افراد ہیں، بچے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان میں ہم نے ویل چیئرز تقسیم کی ہیں۔ اس سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن تقریباً 100 ویل چیئرز جو ہے تقسیم کر چکی ہے، اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہماری طرف سے تمام لوگوں کو بالکل یہ اوپن آفر ہے کہ وہ جو بھی معذور ہے وہ ہم سے فری ویل چیئر کے لیے رابطہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ 2 سے 2.5 ماہ میں ہم انشاءاللہ انہیں جو وہ ویل چیئر مہیا کریں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یہ تمام کام جو ہے مختلف شعبوں میں جو کام کر رہی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے کر رہی ہے، آرفن یتیم بچوں کے حوالے سے کر رہی ہے، اسی کا یہ کمیونٹی سروسز ایک شعبہ ہے، جس کے تحت ہم نے جو یہ تقریب منعقد کی ہے اور ان لوگوں کو اپنی طرف سے ایک خوشیاں دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اسپیشل پرسنز بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس ٹائم کیا تاثرات ہیں۔ جی بہت خوشی ہوئی ہے۔ فاؤنڈیشن کے ادارے صاحب نے اس کام میں بڑی خوشی ہوئی ہے، انہوں نے ساری بڑی ہیلپ کی ہے، ساری مدد کی ہے۔ غریب بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، ساری نے بڑی ہمت کی تھی، مدد کی ہے ساری۔ اللہ پاک حکومت نہیں خوش رکھے تھے، عوام نہیں خوش رکھے، انہیں سارے نال یہ رہنمائی کی ہے۔ بڑی مہربانی ہے جناب کا، بہت بہت شکریہ۔ جی، الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، جس سے اسپیشل پرسن مستفید ہو رہے ہیں۔ جی عامر، آپ کا بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ایک اور خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ حکومت نے عوام پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مد میں 60 ارب روپے کا بم گرا دیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے اکتوبر کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، جس سے دسمبر میں عوام پر 60 ارب روپے کا مالی بوجھ پڑے گا اور واپڈا کو 60 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ سراج الحق نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بڑے معاملات میں حکومت کا ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی طرز کی جماعتیں ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم ماضی کی حکومتوں کا گند صاف کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کا گند صاف کر رہے ہیں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ چند ڈالروں کے عوض ہماری خود مختاری کو بیچا گیا۔ اس ملک میں اسلامی نظام ہی ترقی کی ضمانت ہے۔
मिनी बजट तैयार है और वजीर आजम के इशारे का इंतजार है। कौम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। वजीर आजम खुद कहते हैं कि चारों तरफ माफिया मौजूद हैं। तमाम माफिया को PTI ने सपोर्ट किया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि करप्ट माफिया और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इन माफियाज ने अमन अमान को भी तबाह किया है। इन हालात में इस्लामी निज़ाम के अलावा कोई हल नहीं। PDM ने भी मुस्तकिल तौर पर PTI का साथ दिया है। उनकी बातें सिर्फ हवाई फायरिंग है। 700 अफराद ने ऑफ शोर कंपनियों में सरमायाकारी की। ऑफ शोर में PTI के ज्यादा अफराद हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी समंदर पार पाकिस्तानी अयूब खान आफरीदी ने मुलाकात की और स्पेन के साथ दोहरी शोहरियत के मामला पाकिस्तानी निसात कार्ड के बगैर वीज़े के इजरा से मुतल्लक अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत की और कहा कि इस इक़दाम से समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सकेगा। एक और खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने शाहराहों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों से 2000 रुपए जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपए किया जाए। अदालती फैसले के मुताबिक 7 दिसंबर से मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। हुक्म नाफिजुल अमल होते ही मोटरवे पर सिर्फ एम टैग वाली गाड़ियां चलेंगी। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत 600 अरब रुपए का मिनी बजट बम गिराने जा रही है। पाकिस्तान IMF की डिक्टेशन पर क्यों चल रहा है? एडजस्टमेंट अखराजात में कटौतियों और टैक्स छूट में कमी की वजह से बेरोजगारी और अफरात ज़र में इजाफा होगा। अवाम को आगे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये है वो तब्दीली जिसका तबाही सरकार ने वादा किया था? शीरी रहमान का कहना था कि ये मुल्क को मदीना की रियासत नहीं IMF की कॉलोनी बना रहे हैं। पहले कहते थे IMF नहीं जाएंगे, PTI हुकूमत यू टर्न लेकर IMF चली गई। फिर कहते थे मिनी बजट नहीं होगा, अब मिनी बजट बम गिरा रहे हैं जिससे महंगाई की सुनामी आएगी। फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन का पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का इजलास का बाइकाट अफसोसनाक है। 7 दिहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लिमान को पेश कर रही है। ये मामला सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे, संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में मौजूदा मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुशावरत के बाद 6 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट के फैसले का ऐलान किया था। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन के लिए अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। मुल्क में जारी इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं, लिहाजा गैर वैक्सीन शुदा तमाम अहल अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC का कहना है कि मखसूस उम्र के अफराद के लिए बूस्टर वैक्सीन की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा गया है, जिसमें 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा, जबकि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक बूस्टर वैक्सीन पहली वैक्सीनेशन के तकमील के 6 माह बाद लगेगी और कोरोना से सेहतयाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाया जाएगा, जबकि बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन के लगाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक बूस्टर खुराक पहले से लगी वैक्सीन या मुख्तलिफ भी हो सकती है, जबकि बूस्टर लगाने के लिए तयन इंसदाद कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी पर भी मुनहसिर है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। एक और खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि इदारा शुमारियात ने तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक जुलाई से नवंबर तक तिजारती खजाना 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले तिजारती खजाना 111.74% बढ़ा है
और जुलाई से नवंबर तक बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रहीं। दरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रहा, जबकि 5 माह में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बरामदात 26.68% इजाफा हुआ। जुलाई ta नवंबर गुज़श्ता बरस के मुकाबले में दरामदात 69.17% बढ़ी। नवंबर 2021 में बरामदात 2 अरब 88 करोड़ डॉलर्स रहीं और नवंबर 2021 में 7 अरब 84 करोड़ डॉलर्स की दरामदात की गई, जबकि नवंबर 2021 में तिजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर्स रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब ने कश्मीर समेत कौमी सलामती के किसी मसले को संजीदा नहीं लिया। इमरान साहब के तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत के अमल का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपोजिशन ने कौमी मफाद में कभी किसी सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकाट नहीं किया, जबकि इमरान साहब का आज तक कश्मीर और कौमी सलामती के किसी भी इजलास में शरीक न होना अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान साहब का कोरोना पर कमेटी का बाइकआउट करना अफसोसनाक है। कौमी सलामती कमेटी और अपोजिशन को दी जाने वाली हर ब्रीफिंग का इमरान ने बाइकआउट किया। तनाज़ा जम्मू कश्मीर और अभिनंदन के मामले पर भी इमरान साहब का पार्लिमानी इजलासों का बाइकआउट करना और इमरान साहब को वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाना ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी और उनके मफाद पर नज़रसानी करते हुए इमरान साहब इस्तीफ़ा दें। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वजीर खुराक से महरूम है। उस्मा बुखारी ने बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 3 माह से पंजाब में कोई वजीर खुराक नहीं है। पंजाब के अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा तब्दीली सरकार को भुगत रहे हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है और पंजाब का वजीर सनत, वजीर खजाना और वजीर खुराक लापता हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार अकेला अपने फ्रंटमैन संभालें या लापता वज़रा की वजारतें संभालें, जबकि पाकिस्तान में महंगाई 74 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। खबर शामिल करते हैं कि मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात और तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खबर ने कहा कि पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ से मामला तय पा गए। ऊपर की सतह पर सिर्फ 40 लोकल गवर्नमेंट होंगी। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात व तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खबर का मज़ीद कहना था कि निचली सतह पर पहले से तयशुदा विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल होंगी। उनमें 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स होंगे। रुख करते हैं लिया का, जहां धुंध के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले 4 हादसात में एक नौजवान जाँ बहक और 8 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वाले नौजवान की शनाख्त यासिर के नाम से हुई, जो चक नंबर 482 TDA का रिहायशी था। रेस्क्यू टीम का कहना है कि MM रोड पर अड्डा काजियाबाद के करीब मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर के साथ टकराने से 2 नौजवान जख्मी हुए। तहसील चुबारा की हदूद अड्डा हयाताबाद पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अड्डा काजियाबाद पर कार और कैरी वैन में हादसे के बायस 3 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। करोड़ लालिसन में भी धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। 107 ml के करीब धुंध के बायस मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। तमाम मुसाफिर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस की ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को टक्कर, एक शदीद जख्मी होने वाले एहलकार को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसको तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुसाफिर बस की टक्कर से ASI अमजद जख्मी हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। बस को भी तहवील में लेकर थाना मुंतकिल किया गया है। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां यूरिया खाद का बहरान जारी है। जिले इंतजामिया सरकारी निरखों पर किसानों को यूरिया खाद की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। 1780 रुपए की बजाय 2200 रुपए में भी यूरिया खाद नायाब है। बड़े खाद डीलरों के एका करने से यूरिया मार्केट से गायब हो गई, जबकि गोदामों से खुफिया सप्लाई का सिलसिला जारी है। करोड़ लालिसन, फतेहपुर, कोट सुल्तान, चौबारा, चौक आजम और सिटी लिया समेत शहरी और देहाती इलाकों में काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए दुकानों पर लंबी लाइनों में लगकर जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत मंजर-ए-आम से गायब है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर खाद की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। खबर दे रहे हैं
लैया से, जहां नवाही इलाके कोट सुल्तान में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना महाल किया हुआ है। गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते सख्त गजीदगी के वाकयात में इजाफे का सबब बनने लगे। स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात खौफ का शिकार हो गए। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आवारा कुत्तों का सदेबाब न होने की वजह से बच्चों और ख़वातीन का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से नोटिस लेकर आवारा कुत्तों की शहरी और देहाती इलाकों से मुंतकिली का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आलमी यौम माजूरा के हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर के जेर निगरानी सेमिनार का इनेकाद किया गया। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और खसूसी अफराद की हौसला अफजाई के लिए यादगार शील्ड्स तकसीम की। सेमिनार में जरताज गुल का कहना था कि बाजूर अफराद को अल्लाह ताला ने खुसूसी सलाहियतों से नवाजा है, इसलिए उन्हें स्पेशल पर्सन्स कहते हैं। PTI की हुकूमत ने इनकी फलाह बहबूद और मुलाजमतों में कोटा के हवाले से इनकलाबी इक़दामात किए। ये लोग माशरे के फ़ाल शहरी हैं जो ज़िंदगी के हर शोबा में अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां वजीराबाद रोड पर निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन ने गैर मुल्की मैनेजर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। जान से मारने के बाद लाश को सड़क पर रखकर आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और हालात को कंट्रोल किया। इस दौरान सड़क बंद होने की वजह से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़या पर नोटिस लेते हुए आजी पंजाब राव सरदार अली खान से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली और वाक़या के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। आजी पंजाब ने फौरी तौर पर DPO को सूरत हाल पर काबू पाने और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका, बहरिया ओकियानोस, बहरुल काहिल, अंटार्कटिका और बहरीरा हिंद के इलाकों में देखा जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। महकमे मौसमियात का बताना है कि सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से लेकर 29 मिनट पर होगा और सूरज को मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे लगेगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 2:37 पर होगा। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आगा सिराज को नैब के सामने सरेंडर करने के हुक्म के बाद नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। PP रहनुमा और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने आमदन से ज्यादा असासा जात केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है, जहां जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही रुकनी बेंच ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट पर आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूख की। हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल के बगैर सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत नहीं करेगी। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि जब हाई कोर्ट ने जमानत मनसूख की तो आपको जेल में होना चाहिए था। आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें? अदालत ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए कहा कि आगा सिराज पहले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें और नैब को गिरफ्तारी दें। इसके बाद आइंदा हफ्ते उनका केस सुनेंगे। आगा सिराज के वकील उमर नकवी ने अदालत से कहा कि हमने आपके सामने खुद को सरेंडर कर दिया। इस पर जस्टिस उमर अता का कहना था कि नहीं, आप नैब के सामने सरेंडर करें, हमने पहले भी आपको रियायत दी थी। हाई कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ खड़ा है। आगा सिराज दुरानी के वकील का कहना था कि बयानी हल्फी दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, खुद सिंध में गिरफ्तारी देंगे। इस पर जस्टिस उमर अता ने कहा कि हम नैब के उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये नैब का अपना मामला है, गिरफ्तारी के मामले में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क का सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान ने सरबराह कामयाब नौजवान प्रोग्राम उस्मान डार को मुलाकात के लिए बुलाया। हुकूमत 6 दिसंबर को पाकिस्तान का बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है। आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों का भी इस प्रोग्राम से मुतालिक हुकूमत से राब्ता हुआ और उनकी जानिब से पाकिस्तानी टैलेंट की इंटरनेशनल मयार के मुताबिक कोचिंग की भी पेशकश की गई। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।